الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو اب کوشچن 2 پہ آئیے. کوشچن نمبر 1 اور جو آپ نے کنورسیشن کا یہ پڑھا تو وہاں ہم نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو سیکھا وہ ضمیر کے بارے میں ہی تھا، جس کے بارے میں ہم نے ایک الگ سے بھی ورڈ فائل پر بھی ہم نے وہ اس کو سکھانے کی کوشش کی. یہاں آپ کو صرف 2 ضمیر ہیں، ہو اور ہا، ان کو استعمال کرنا ہے. میں نے آپ کو بولا کہ لکھنے کے حوالے سے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ 2 ضمیریں جو ہیں کس کیٹیگری میں آئیں گی، اٹیچڈ پروناؤن یا ڈیٹیچڈ پروناؤن؟ اٹیچڈ، یعنی ضمیر متصل. یہ دونوں ضمیر متصل کی کیٹیگری سے ہیں. ہو لگے گا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. بہت اچھا. اور ہا کس کے لیے؟ مونس کے لیے. اگر ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہو کو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہز. ویری گڈ، ہز. ہا کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہر. بہت اچھا. سو ہز اور ہر. بہت اچھا. تو اب سوال دیکھیے کیا ہے. ذا فی الفراغ، خالی جگہوں میں رکھو، فی ما یلی، ان دا فالوئنگ، الضمیر، ضمیر کو، یعنی ضمیر کو ہو یا ہا، یعنی خود آپ کو چوز کرنا ہے میرے لیے اپروپریٹ ضمیر استعمال کرنا یہاں کیا ہے، کون سی ضمیر اپروپریٹ ہے. اب نمبر 1 پڑھیں گے ہم پروفیسر صاحب سے شروع کریں گے. میں نہیں پڑھوں گا، بس میں سنوں گا. آپ پڑھیے اور خود اس میں ضمیر لگائیے کہ کیا لگے گی. معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسمہا زینب. ہاں نہیں، پورے سینٹینس کو پڑھے نا، پورے سینٹینس. ہذہ بنت طالبہ، ہذہ بنت طالبہ اسمہا زینب. اسمہا زینب. بہت اچھا، بہت اچھا، شاباش. آپ نمبر 2 پہ آئیں گے. نذیر احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. محمد طبیب. بہت اچھا. پھر کیا ہے؟ وابن، ابن ہے. الف چونکہ حمزۃ الوصل بیچ میں پڑھا نہیں جائے گا. وابنہ مہندس. وابن ہو، چونکہ محمد مذکر ہے تو ہو لگے گا. وابنہ مہندس. جی جی جی، شاباش. نمبر 3 نیلم افروز، آپ پڑھیں. هذا الرجل تاجر كبير. بہت اچھا. اسمه عبد اللہ. اسمہ عبد اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا، شاباش. نمبر 4 ہاں یہاں ریڈمی ہے اور پتہ نہیں، میں نے کہا تاکہ نام لگائیں لکھیں ان پہ تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں. تحلیل فاطمہ، آپ پڑھیں نمبر 4. آمنت في الغرفة ہاں بہت اچھا. ہاں آمینۃ فی الغرفۃ. آمینۃ فی الغرفۃ. ام مینز مدر. امہا و امہا و امہا فی المطبخ. آمینہ کمرے میں ہے اور اس کی ماں کچن میں ہے. شاباش. سریہ جبین، آپ پڑھیں نمبر 5. کوشش کریں غلطی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوشش کریں. شاباش. عائشہ عائشۃ طیبۃ. عائشۃ طبیبۃ. طبیبۃ. بہت اچھا. وأخت طبیبۃ وأختہا. شاباش. اور وأختہا ممرضۃ. ممرضۃ. پھر سے پڑھیے اس کو، ممرضۃ. ممرضۃ. ہاں. طبیبۃ کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر. ممرضۃ مریض. نرس. ممرضۃ مینس جو نرس ہے، جو نرس ہوتے ہیں، مطلب وہ جو بیمار کو یہی کہتے ہیں. اچھا. نمبر 7 ہے ہمارے پاس. کیا نام ہے؟
रेडमी है तो इसमें क्या किसको मैं बुला दूं? आप कोई भी पढ़े जिसको अच्छा लगे. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. जमील का नहीं है, लाम है, लाम. जमीलहू. शाबाश. मोहम्मद क्लासरूम से निकले और उसके साथ उसका कोलीग भी निकला. शाबाश. अब क्वेश्चन 3 पे देखिए, जरा गौर कीजिए. ये कहता है कि हाथ लाओ खमसत अस्इलतिन व अजविबतिन, 5 सवाल जवाब. कल मिसाल अल-आती, इस मिसाल की तरह. एक आप में से पूछेगा दूसरे को, क्या इंदक कलम, क्या आपके पास पेन है? वो जवाब देगा पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में. नाम, हाँ. इंदी कलम, यानी आपको सीखना है कि मुझे अफर्मेटिव में जवाब कैसे देना है. अगर आपसे कल कोई ऐसा सवाल पूछे, इंदक कलम, नाम इंदी कलम. आप जरा बनाइए दूसरा सेंटेंस इसी तरह. क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बनाइए. इंदक सय्यारतुन. बहुत अच्छा. जवाब क्या देंगे? इंदी सय्यारतुन. बहुत अच्छा. एक सेंटेंस हो गया. नंबर 2, दूसरा बनाइए. इंदक दफ्तरुन. दफ्तरुन. शाबाश. जवाब क्या होगा? नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव में जवाब देना है. आपके पास है या नहीं? आपको सिर्फ नाम में जवाब देना है. नाम इंदी दफ्तरुन. हो गए 2 सेंटेंस. शाबाश. तीसरा बनाइए. और कोई बना सकता है? इंदक दरजतुन. इंदक दरवाजतुन. बहुत अच्छा. जवाब? नाम इंदी दरजतुन. नाम इंदी दरवाजतुन. हो गए 3 सेंटेंसेस. नंबर 4, इंदक कुर्सियुन. कुर्सियुन. बहुत अच्छा. जवाब? नाम इंदी कुर्सियुन. कुर्सियुन. इसको फिर से पढ़िए. कुर्सियुन. नाम इंदी कुर्सियुन. कुर्सियुन. हाँ, उर्दू में जब आप पढ़ते हैं तो कुर्सी ठीक है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अरबी में पढ़ेंगे तो कुर्सियुन, या के ऊपर तजदीद के साथ पढ़ेंगे. शाबाश. हो गए 4 सेंटेंस. अब आखिरी सेंटेंस बनाइए. इंदक सय्यारतुन. इंदक सरीरुन. इंदक मिफ्ताहुन. मिफ्ताहुन. शाबाश. क्या आपके पास चाबी है? जवाब क्या नाम होगा? इंदी मिफ्ताहुन. नाम इंदी मिफ्ताह. माशाअल्लाह. तो हो गए 5 सेंटेंस. अब यही सवाल है. नंबर 4, हाथी खमसत अस्इलतन वाजिबतिन कल मिसाल अलती. इस मिसाल की तरह 5, यानी अभी तो आप ऊपर अफर्मेटिव में जवाब, नाम में जवाब दे रहे थे. अब आपको नेगेटिव में जवाब देना है. इंदक कलम, क्या आपके पास पेन है? अब जवाब देते हैं. ला, नहीं. मा इंदी कलम, मेरे पास कलम नहीं है. तो 2 बार. पहले ला, फिर आप थोड़ा स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, पॉज करेंगे, फिर कहेंगे मा इंदी कलम, मेरे पास कलम नहीं है. आप सुन रहे हैं ना? बनाइए पहला सेंटेंस. शाबाश. इंदक मिफ्ताहुन. ला मा इंदी मिफ्ताहुन. बहुत अच्छा. हो गया 1. नंबर 2, इंदक कलमुन. ला मा इंदी कलमुन. कलमुन. ये तो आ गया है, तो मैं इसको मानूंगा कि ये 9 बार हो गई. इंदक हकीबतुन. हकीबतुन. बैक. बहुत अच्छा. मैं ये असल में देखना चाहता हूँ ये भी इसके साथ साथ कि आपको वोकैबुलरी आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. लिहाजा नए नए वर्ड इस्तेमाल कीजिए. इंदक मिफ्ताह अभी किसी ने इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा वर्ड है. किताब किसी ने इस्तेमाल नहीं की. मुझे ये तो बड़ी अजीब बात लग रही है. सर वो हमने पहले की एक बार में. अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़िए. नंबर 2, इंदक इंदक कुर्सियुन. कुर्सियुन. शाबाश. जवाब? ला मा इंदी कुर्सियुन. कुर्सियुन. शाबाश. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए. इंदक नाकतुन. नाकतुन. बहुत ला ऊँटनी. मा ला मा इंदी नाकतुन. ठीक है. नंबर 4 हो गई 3 सेंटेंस. इंदक बकरतुन. बकरतुन. शाबाश. नाम, ये सॉरी, ला. ला मा इंदी बकरतुन. शाबाश. आगे बढ़ी.
عندك فرس لا ما عندي فرس. शाबाश. तो हो गए 5 सेंटेंस. तो अब आपने इन दोनों सवालों में ये सीखा कि आपसे अगर कोई सवाल पूछे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी इंद का दरवाजा, तो अब आपको अपनी हकीकी जिंदगी के बारे में कहना है. कोई कहेगा नअम इंदी, तो जिसके पास है वो क्या जवाब देगा? नअम इंदी दरवाजा, तो हाँ मेरे पास बाइसिकल है. लेकिन दूसरा बंदा है जिसके पास नहीं है, तो वो कहेगा ला मा इंदी दरवाजा, तो मेरे पास बाइसिकल नहीं है. ठीक है ना. इसके बाद जो आ रहा है लेसन, उसमें आपको एक अपने बारे में मजमून लिखना पड़ेगा. वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर आप अपने अपने बारे में लिखने की कोशिश करेंगे. इसलिए ये चीजें, ये सेंटेंसेस याद रखिए. आपको कैसे बात करनी है, पॉजिटिव ये ना अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, फिर जवाब कैसे देना है, वगैरह वगैरह. तो ये हो गए 4 क्वेश्चन. अब एक और चीज आइए जो इसके साथ इंपॉर्टेंट है. बाइतुन बना हुआ है, ये एक मकान बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है बाइतुन यानी घर. ये हमारे सवाल ये हमें बता रहा है तअम्मल, गौर करो. तअम्मल मा यली. हम उर्दू में भी इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं. तअम्मल मीन्स तअम्मुल करो, गौर करो, गौर खोज करो. किस पर? मा यली जो आ रहा है. देखिए ज़मीर मुत्तसिल सिखाना चाहता है ना. ज़मीर मुनफसिल तो इसने 2-4 आपको सिखाए, आप वो जानते भी हैं, तकरीबन हर मुसलमान जानता है. चाहे ग्रामेटिकली उसको नाम पता तो नहीं हो, लेकिन अंता जानता है, अंती जानता है, अंतुम, हुआ, हिया, ये चीजें तो वो जानता है. लेकिन ज़मीर मुनफसिल के बारे में बहुत कम मुसलमान जानते हैं. खासकर उनकी बात मैं कर रहा हूँ जिनको ग्रामर पता नहीं है. ठीक है. तो यहाँ आपको वही चीज उसमें से 2-4 सिखा रहा है. बाईती, बाईती, बाईती. ये या जो है, या इसको हम बोलते हैं या ये मुतकल्लम. मुतकल्लिम मीन्स बात करने वाला अपने बारे में बताता है. बाईती, कलमी, किताबी, मेरा घर, मेरा कलम, मेरी किताब वगैरह. फिर आते हैं हम का, यानी आप एक मर्द का. बाईतु का योर, मगर मेल के लिए. बाईतु का आप एक मर्द का घर. कलमु का, किताबु का, इब्नु का, वगैरह वगैरह. फिर आते हैं हम 2 और ज़मीरों की तरफ जो आपने अभी पढ़े, हु और हा. उस एक मर्द का घर यानी हिज, उस एक औरत का घर यानी हर. बाइतु हु, बाइतु हा. ये 4 जो है बहुत इस्तेमाल होते हैं. इसके साथ एक और भी ऐड करूंगा मैं, बाइतु का, यहाँ में बाइतु की, आप एक औरत का घर, आप एक लड़की का घर. ये 5 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए पहले इन्हीं को सीखते, क्योंकि बुक ऑथर ने हमें 4 ही दिए हैं, तो हम 4 पे ही कंसंट्रेट करेंगे. बाइती मेरा घर, बाइतु का आप एक मर्द का घर, बाइतु हु उस एक मर्द का घर, बाइतु हा उस एक औरत का घर, उस एक औरत का. ये तो हो गया माने. अब ग्रामर पे आइए. ये सारे 4 तरकीबें जो है ये मुजाफ मुजाफ इलैह है. बाइतुन मुजाफ, या ये मुतकल्लिम जो है मुजाफ इलैह है, तो जेर वाली ज़मीर है. बाइतु का, बाइतु मुजाफ का मुजाफ इलैह है, ये भी जेर वाली ज़मीर है. अब आप कहेंगे यहाँ तो जबर है, जेर कहाँ है? चूंकि का जो है ये ज़मीर जो है ये मबनी है, तो ये मबनी अपनी हालत में रहेगा हर हाल में. जैसे आप हाजा इस्तेमाल करेंगे जुमले में, चाहे आप पेश वाली जगह इस्तेमाल करेंगे तब भी वो हाजा है, आप जबर वाली जगह इस्तेमाल करेंगे तब भी वो हाजा है, आप जेर वाली जगह इस्तेमाल करेंगे तब भी वो हाजा. वो अपनी शक्ल नहीं चेंज करेगा. उसको बोलते हैं मबनी, उसको बोलते हैं मबनी, यानी जो एक ही शक्ल पर कहता है. इस मबनी का अपोजिट होता है मुअरब, यानी जो हालत ही चेंज करता है. किताबुन, किताबन, किताबिन, ये मुअरब हो गया. ठीक है. इनको आप आगे पढ़ते जाएंगे, मैं थोड़ा छेड़ता रहता हूं ताकि आपके जहन में और सवालात खड़े हो जाएं. बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 पर. ये क्वेश्चन 5 हमारे पास है इस वक्त इसी चीज के बारे में. आजिफ मुजाफ बनाओ. अल अस्मा अल आतियता, इन इसमों को, आने वाले इसमों को, इलल मुतकल्लिम
پہلے متکلم کی طرف. متکلم مینس یعنی پہلے آپ اپنے بارے میں بولیں گے کہذا قلمی یہ میرا پین ہے. پھر آپ دوسرا والمخاطب. مخاطب مینس سیکنڈ پرسن میسکولائن. مخاطب یعنی آپ مرد کے ساتھ بات کریں قلمک ھذا قلمک. پھر تیسرا والغائب یعنی مذکر غائب ہز کی طرف ھذا قلمہ. اور پھر چوتھی ضمیر جو ہے والغائبۃ ہر یعنی مونس غائب کی طرف قلمہا ھذا قلمہا کما ہوا موضح فی المثال جیسے مثال میں دکھایا گیا ہے. ھذا قلمی ھذا قلمک ھذا قلمہ اور ھذا قلمہا. شاباش. اب ذرا اسی طرح کتاب کے بارے میں بتائیے مجھے 4 سینٹنس. ھذا کتابی ھذا کتابک ھذا کتابہ ھذا کتابھا. بہت اچھا. اب کوئی دوسرا بندہ شروع کرے. سریر. ھذا سریری ھذا سریرک بہت اچھا. ھذا سریرک ھذا سریرہ ھذا سریرھا. سریر رو 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 ھذا مبتدا سریر خبر. سو خبر بھی پیش والی ہوتی ہے. شاباش. اسم بنائیے. ھذا اسمی. ھذا اسمی. شاباش. ھذا اسمک. ھذا اسمہ. شاباش. ھذا اسمھا. اسم. آپ کا نام کیا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی؟ اعجاز احمد وانی. ہاں آپ اس کا چینج کریں گے نام تاکہ مجھے پہچانے میں آسانی ہو. تو اعجاز صاحب آپ یاد میں رکھیے. روزانہ چینج کرتا ہوں. ہاں پتہ نہیں ڈیلیٹ یہ ہوتا ہے. میرے اس پہ آ رہا ہے اسکرین پہ IKPCOSSTH وغیرہ وغیرہ لمبا ہے کچھ. تو آپ سر ایسا نہیں سر ہاں میں ہاں تو کوئی بات نہیں. رینیم کرتا ہوں. ہاں کوئی بات نہیں. تو اسم کا الف جو ہے نا اسم کا الف یہ حمزۃ الوصل ہے. کیا ہے؟ حمزۃ تو بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا. تو آپ نے جب کہا ھذا اسمی پروننسیشن میں غلط ہے. ہم کہیں گے ھذا اسمی یعنی آپ نے ٹھیک بنایا لیکن ہم پڑھیں گے کیسے ھذا اسمی کیونکہ الف بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا. ھذا اسمک ھذا اسمہ ھذا اسمہ. بہت اچھا. چلیے سر اب مندیل ہے. شاباش پڑھیں. ھذا مندیلی ھذا مندیلی. بہت اچھا. ھذا مندیلک مندیلک. ھذا مندیلہ شاباش. ھذا مندیلھا. بہت اچھا بہت اچھا. اب ابن پہ آئیے. شاباش. ھذبنی ھذبنی ھذبنی. بہت کیونکہ ابن کا الف بھی حمزۃ الوصل ہے. ھذبنی. ھذبنک ھذبنک. بہت اچھا. ھذبنہ ھذبنہ. شاباش. ھذبنھا ھذبن نون پیش نو. ھذبن ھذبنھا ھذبنھا. ھذبنھا. شاباش. اس کے بعد سیارۃ. ھذا سیارتی. ھذا آئے گا. ھذہ ھذہ. ویری گڈ کیونکہ مونس ہے. ھذہ سیارتی. سیارتی. بہت اچھا. شاباش. خیال رکھنا ہے نا جو قاعدے آپ نے پڑھے اب وہ سارے آئیں گے. ایسا نہیں چلے گا. شاباش. ھذہ سیارتی سیارتی. ہاں چائے کے لیے مت جائیے باقی لوگ شاید چائے پینے کے لیے گئے ہیں. اچھا واپس آئیے کلاس میں. ھذہ سیارتک ھذہ سیارتکی سیارتک. سیارتکی. شاباش. سیارت کی اگر لڑکی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو سیارت کی لیکن یہاں چونکہ ہمیں کی استعمال نہیں کرنا ہے تو ہم سیارت کا کہیں گے. ھذہ سیارت کا. ھذہ
मोनस हाँ। है ना। सयारा मोनस है तो सयारा तो की आना चाहिए। बहुत अच्छा, लेकिन आप मोनस तो नहीं है ना। मैं आपसे कहता हूं ये आपकी गाड़ी है, गाड़ी तो मोनस है लेकिन आप तो मुज़क्कर है ना, का लगेगा आपके लिए, आपकी गाड़ी। सो मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल, आपकी, आपका गाड़ी नहीं कहेंगे ना, आपका गाड़ी नहीं कहेंगे। हाँ हाँ या बिल्कुल आपका गाड़ी नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपकी गाड़ी तो सयारा तो की हो गया। हाँ सैयारत की आपकी गाड़ी, हम जब कहेंगे सैयारत के मीन्स आपकी गाड़ी, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मर्द के बारे में ये नहीं कह सकते कि आपकी गाड़ी है। हम तो मर्द को भी ही कहेंगे ना कि आपकी गाड़ी है, औरत को भी कहेंगे आपकी गाड़ी है। सयारा तो की, हाँ हाँ, तो सयारा तो की हो जाना चाहिए। सैयारत तो की, नहीं, की क्यों हो जाएगा, प्रोनाउन थोड़ी चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन क्यों चेंज हो जाएगा। सयारत की जब लड़की की गाड़ी हो, औरत की गाड़ी सयारत। अच्छा नहीं, इनको समझने दीजिए, इनको समझने दीजिए, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अच्छा, मुझे आप प्रोफेसर साहब से मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास जी। कलम है, आपके पास कलम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपका कलम है। अब हमारे पास जी। यहाँ फॉर एग्जांपल कोई मैडम है, तो मैं उनसे कहता हूँ ये आपका कलम है, या मैं ये कहता हूँ ये आपकी कलम है, क्योंकि कलम मुज़क्कर है। हाँ कलम मुज़क्कर है। तो तो चाहे अगर हम ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है, घड़ी मोनस है, तो बिल्कुल। अगर ये औरत की है उसको भी आपकी कहेंगे, मर्द। तो यहाँ सयारतुन तो मोनस है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो घड़ी अगर मोनस है, आपकी घड़ी यानी औरत से भी कहेंगे, मर्द से भी कहेंगे आपकी घड़ी, हाँ आपकी बिल्कुल घड़ी कहेंगे, आपका घड़ी नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल, घड़ी तो यहाँ फिर उल्टा होता है। हाँ, 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 उर्दू ये है यहाँ सयारा जो है मोनस है, तो अगर ये औरत की है तो उस वक्त भी आपकी गाड़ी है। अगर मर्द है तो उस वक्त भी आपकी गाड़ी है, आपका गाड़ी नहीं है, अगर बिल्कुल मर्द भी है। बिल्कुल। ये तो उर्दू हो गया, ये तो नहीं, ये तो उर्दू हो गया। अब मुझे अरबी अरबी बताइए। में डिफरेंस। हाँ हाँ, अरबी बताइए मुझे सर। तो मैं उसको सयारा मैं सयारा खुद इसी तरह कंफ्यूज हो गया था जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा, तो बिल्कुल ठीक इसी तरह कंफ्यूज हो गया था मैं। असल में देखिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं यहाँ ऊपर आऊंगा, आप दिख रहा है ना, ये कर्सर दिख रहा है ना। जी जी। हाँ, ये देखिए, एक चीज यहाँ है हाजा, एक चीज है का, दो चीजें हैं ना, और बीच में है इस्म। पहला है हाजा, जो है ये इसमें इशारा है, इसमें इशारा है, इसका ताल्लुक इस इस्म के साथ है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये जो लास्ट में का जो है, ये ज़मीर प्रोनाउन, इसका ताल्लुक है उस जात के साथ जिस, मतलब टू होम दिस कलम बिलोंग्स। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लियर, आप मतलब थोड़ा सा क्लियर हो गया। ये हाजा जो है उस चीज की तरफ इशारा जिसके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक, तो मुज़क्कर है वो मोनस है तो उसी एतबार से आएगा, मुज़क्कर मोनस। मिसाल कलम मुज़क्कर है तो आपने हाजा लिखा, सय्यारतुन मीन्स गाड़ी यानी कार, ये मोनस है तो आप लिखेंगे हाज़िही। लेकिन आप अब किसके साथ बात कर रहे हैं? अगर आप मेरे साथ बात करें, मैं मुज़क्कर हूं, तो आप कहेंगे कलमु का सय्यारतु का, आप एक मर्द की गाड़ी या आप एक मर्द का कलम। लेकिन अगर आप औरत के साथ बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ कलमु की, और यहाँ कहेंगे सय्यारतु की। ठीक है ना? जी 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 क्लियर हो। असल में हाजा और हाजी बन गया। हाँ, हाजी बन गया, लेकिन का जो है ये सेम रहेगा, क्योंकि आप एक मर्द के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप मर्द के मुतालिक जितनी चीजें हैं, ये सॉरी, मर्द की साथ जितनी चीजें बिलोंग करती हैं, उसके मिसाल आप घर जाएंगे तो आप कहेंगे ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। लेकिन आपका जो है ये तो अरबी में आपका ही रहेगा ना, मुज़क्कर ही रहेगा। आप और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप बताइए प्लीज, ओपनली बताइए। हो गया ना, शाबाश। सर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, का मुज़क्कर के लिए और की मोनस के लिए कंफ्यूजन खत्म। नहीं, आप तब बता रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। आप मुझसे पूछिए, जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था तो मेरी हालत क्या बन गई थी क्लास में, क्योंकि इन्होंने इसको पहली बार देखा है। दो चीजें एक साथ आ गई, इसमें इशारा भी आ गया और ज़मीर भी आ गई, तो दोनों चीजें कंफ्यूज। एक इसम है इस सेंटेंस में, वो है कलम। इस कलम से पहले इसमें इशारा और इस कलम के बाद एक ज़मीर, तो कंफ्यूजन तो हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू है, हम उर्दू के हवाले से उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बहरहाल आगे बढ़िए, तो हम लिखेंगे हाज़िही सय्यारती
हाजिही सय्यारतु का, आप एक मर्द की गाड़ी, हाजिही सय्यारतु हु, उस एक मर्द की गाड़ी, हाजिही सय्यारतु हा, उस एक औरत की गाड़ी। क्लियर हो गया? जी। हाँ चलिए, अब है मिफ्ताह। हाज़िही मिफ्ताही। हाजी मिफ्ताही, बहुत अच्छा। आज ही मिफ्ताह का, मिफ्ताह हु मिफ्ताह हु मिफ्ताहुका। का, बहुत अच्छा। नंबर 3 आज ही मिफ्ताहुहु। अच्छा ये मुझे बताइए, मैं देखना चाहता था कि बाकी लोग कहाँ हैं। हाँ मैं वही उसी का मैं इंतजार कर रहा था ना कि आप लोग क्यों नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मिफ्ताह और मुज़क्कर है, हाजी नहीं लगेगा, हाजा लगेगा, हाजा लगेगा। तो हम कहेंगे हाजा मिफ्ताही, ये मेरी चाबी है। हाजा मिफ्ताहुका, मिफ्ताहुका, ये आपकी चाबी है। हाजा मिफ्ताहुहु, मिफ्ताहु उसकी, उस एक मर्द की, हिज की, उसकी चाबी है। हाजा मिफ्ताहु हा, उस एक औरत की चाबी है, उस एक औरत की चाबी है। शाबाश। नंबर 8 देखिए, ये लास्ट वाला देखिए, यदुन जो है। हाजा यदी। नहीं 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 नहीं, अच्छा, हाथ कितने हैं इंसान के पास, कितने हाथ हैं? दो दो। के तो आपने मोर कायदा पढ़ा है, जो इंसानी जिस्म में दो चीजें जो पेयर्स में है वो मोनस इस्तेमाल होते हैं। हाजी ही यदी, ये मेरा हाथ है। शाबाश। नंबर आगे बढ़िए, हाजी ही यदी। हाज़िही यदुका, बहुत अच्छा, आपका हाथ। शाबाश। हाज़िही यदुहु, यदुहु, बहुत अच्छा। हाज़िही यदुहा, यदुहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये देखिए आप कितने कायद, इसमें आपने 3 चीजें देखी। एक तो मुज़क्कर है भाई, मुज़क्कर के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है, लेकिन जब मोनस के पर आप पहुंच गए तो कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया, और जब आप आखिर पर पहुंच गए तो आपने इस कायदे को भूल ही दिया था, भुला दिया था आपने। इन कायदों को याद रखिए ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इक़रा पढ़ो। ली, लका, लहू, लहा, यानी आपने यही चार ज़मीरें जो हैं, ये ज़मीर मुत्तसिल या, का, हु, हा, इनको आप हर्फ जर या किसी हर्फ के साथ मिलाकर कैसे लिखते हैं? नंबर 1, ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक, आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक बहन है। ली उख्तुन वाहिद, इसमें 2 पॉइंट सीखने के लिए है। एक ये कि आप देखिए भाई कि हु, हा, का वगैरह जो है, ये ज़मीर मुत्तसिल जो है, इसको आप हरफों के साथ मिलाकर भी लिखते हैं। नंबर 2, इसमें यह चीज है कि इंसानी रिश्तों की बात हो रही है तो हम लिखते हैं ली, लिखिए इंदा का वगैरह। ली उख्तुन वाहिदा, मेरी एक बहन है। आ लका अखुन, क्या आपका कोई भाई है? ला नहीं। माली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं। हाँ, तो अब यहाँ सीख रहे हैं ना आप कि आपने अभी ऊपर जो है आपने जवाब देने की कोशिश की थी नेगेटिव में, वहां थोड़ा आप गलती कर रहे थे, तो इसलिए आप यहाँ आ गए जहां आप ये सीख रहे हैं। तो आपको कैसे कहना है? मैं आपसे कह रहा हूँ क्या आपका कोई भाई है? आप कहते हैं नहीं। ला मा इंदी अखुन, मेरे पास, ला सॉरी माली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं। इस तरह मैं आपसे सवाल करूंगा, अलका उख्तुन,
क्या आपकी कोई बहन है? आप जवाब देंगे ला, नहीं। माली हाँ, उख्तुन, माली उख्तुन, मेरी कोई बहन नहीं है, नहीं। वगैरह। नंबर 3, उख्ती, मेरी बहन, लहा तिफलुन सगीरुन, उसका एक छोटा बच्चा है। देखिए कितनी खूबसूरती से सेंटेंस बनाया है। उख्ती लहा तिफलुन सगीरुन, मेरी बहन, उसका एक छोटा सा बच्चा है। नंबर 4, जमीली, मेरा कलीग, लहू उख्त अखुन व उख्तुन, उसका एक भाई है और एक बहन है। उसका एक भाई है और एक बहन है। ठीक है ना? अच्छा, शाबाश। इसको डॉक्टर साहब ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी बहन का एक छोटा है, या पहले कहेंगे मेरी बहन और उसके बाद कहेंगे उसका एक ये बच्चा ज्यादा है। फंसी है, यही तो मैं कहना चाहता था। ये हम अगर हम बनाते इस सेंटेंस को तो हम कहते हैं, मिसाल अगर मुझसे आप पूछ तो मैं कहता ली उख्ती, मेरी बहन का है, तिफलुन सगीर, छोटा बच्चा। लेकिन खूबसूरत तरीके से बनाने का, इसको हम बलीग तरीके से कहेंगे, बलागत इसमें ज्यादा है कि आप इस तरह इसे बनाएंगे, उख्ती मेरी बहन, लहा तिफलुन सगीर। अब देखिए इसको जबान पर भी कैसे निकलता है, फ्लो से निकलता है ना। अगर आप इसके बजाय ये कहेंगे ली उख्ती तिफलुन सगीरुन, कुछ अजीब सी तरकीब लग रही है। तो फसी तरीका यही है, बलीग तरीका यही है कि आप ऐसे कहेंगे। इस तरह आप अपने दूसरे रिलेटिव्स के बारे में कहेंगे, अखी लहू लहू वलदुन कबीर, मेरा भाई है, उसका एक बड़ा बेटा है। ठीक है, हुआ, फिर हम उस बेटे के बारे में बात करें, हुआ तालिबुन बिल जामिया, वो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, यानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वगैरह वगैरह। तो आप आइए, सर एक तो हो गया खूबसूरत बन गया, दूसरा तो अगर हम वो लिखेंगे ली से फिर चेंज होता है कुछ? नहीं, चेंज तो नहीं हो जाएगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा। या आप मानिए कि आप अगर आप उस तरह सेंटेंस कहेंगे, हाँ खूबसूरत बनेगा, बाकी खूबसूरत गलत बनेगा। नहीं हो नहीं, गलत तो वो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कुदरती सी बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने बयान सिखाया है, और बयान में ये चीज है कि भाई आप अपनी बात को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अरबिक जबान का खासा यही है कि हम इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काफी यहाँ मतलब ये होता है, काफी बहस होती है। और कभी कभार ऐसा होता है, जब आप इंशाल्लाह मुब्तदा और खबर के बारे में और चीजें पढ़ेंगे, वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कभी कभी खबर पहले आती है, मुब्तदा बाद में आता है। फिर हम क्या सवाल करते हैं, आखिर क्यों? आपने तो पहले हमें पढ़ाया था कि भाई मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में। आज आप क्यों कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है? तो उस वक्त जवाब दिया जाता है कि क्योंकि खबर पे ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए, यानी सुनने वाले को ये बताने के लिए मैं ये बता रहा हूं इस चीज के बारे में, उस वक्त पहले खबर लिखी जाती है और फिर मुब्तदा को लाया जाता है। ठीक है ना? तो वो चीजें आगे इंशाल्लाह आएंगी, जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो वो वहां आएंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ कहता है नकूल, हम कहते हैं, इंदी किताब, मेरे पास किताब है, व नकूल, और कहते हैं, ली अखुन, मेरा एक भाई है, ला नकूल, हम नहीं कहते इंदी अखुन, मेरे पास एक भाई है। यानी हम जब इंसानी रिश्तों की बात करते हैं तो इंदी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, चीजों के बारे में बात करेंगे तो इंदी इस्तेमाल करेंगे, इंदी इस्तेमाल, या इंदका, इंदहू, इंदहा, ये इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट का समय है, लेकिन हम इस 5 में इस एक चीज को और भी पढ़ सकते हैं। ये मा है, मा मीन्स साथ, मा मीन्स साथ। आप कहते हैं मा का आपके साथ, मा खालिदिन, खालिद के साथ। खराजा हामिदुन मा खालिदिन, हामिद खालिद के साथ चला गया, खालिद के साथ निकला, हामिद खालिद के साथ निकला। खराजा हामिदुन मा खालिदिन, हामिद खालिद के साथ निकला। नंबर 2, ज़हबा अत्तबीबु मअल मुहंदिसी, मअल मुहंदिसी, ट्रांसलेट कीजिए, शाबाश। डॉक्टर इंजीनियर के साथ डॉक्टर चला इंजीनियर गया। के साथ गया, बहुत अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर के साथ चला गया। नंबर 3, जलसा
المدرس مع المدير. استاد प्रिंसिपल के साथ बैठे. बैठा हुआ है. استاد प्रिंसिपल के साथ बैठा. استاد प्रिंसिपल के साथ बैठा. बैठा. हाँ. नंबर 4 من معك يا علي. اے علی अली आपके साथ कौन है? आपके साथ तुम्हारे कौन साथ है? कौन है? जवाब माई जमीली. मेरे साथ मेरा कुलीग है. कोलीग है. शाबाश. क्लास नंबर में 5 आमिनतु माहा ज़ौजुहा. आमिना उसके साथ है, उसके शौहर. उसके शौहर. हाँ. ज़ौजुन वर्ड जो है इसके बारे में याद रखिए. ज़ौजुन असल में कहते हैं हाँ स्पाउस को. अरबी में इंग्लिश में स्पाउस बोलते हैं, तो ज़ौजुन असल में कहते हैं स्पाउस को. तो अगर हम कहेंगे आमिना तो उसके बारे में आएगा ज़ौजुहा यानी उसकी शौहर यानी उसके स्पाउस. अगर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हामिद तो हम कहेंगे ज़ौजुहू यानी उसकी बीवी या उसकी स्पाउस. तो दोनों माने हैं इसके. नंबर 6 खराजा अबी मिनल बैत. खराजा अबी मिनल बैत. मेरे वालिद साहब घर से वालिद निकले. घर से. मन खराजा माहू उसके उनके साथ कौन? कौन के निकला? साथ निकला. कौन निकला? खराजा माहू अम्मी उसके साथ मेरे मम्मी अम्मी. अम्मी. अम्मी अम्मी मीन्स मदर. नहीं Mother. नहीं वो तो उम्मी हो गया. ये अम्मी है. ये 8 नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अंकल. वही. अच्छा अंकल ये मुजक्कर है. मुजक्कर अंकल. अंकल उसके साथ मेरे चाचा चले गए. खराजा माहू उसके साथ निकले. अम्मी मेरे चाचा उसके साथ मेरे चाचा निकले. उसके साथ मेरे चाचा. इसको मुन्नस क्या आएगा? अम्मती. अम्मुन जो है इसके या काट दीजिए. अम्मुन एन मीम इसके ला आखिर पे गोल ता डाल दीजिए वो बनेगा मुन्नस. अम्मतुन पोफ या चाची. या चाची. हाँ पोफ और इसको दोनों के माने में आता है. शाबाश. तो यहाँ पे माँ के बारे में एक और चीज याद रखिए कि माँ हमेशा मुजाफ इस्तेमाल होता है. माँ हमेशा मुजाफ इस्तेमाल होता है. इसके बाद आने वाला इसम जो होगा वो मुजाफुन इलैह होगा, इसलिए जेर वाला होगा. चाहे 2 जेर या 1 जेर वो आप खुद देखेंगे. अगर इल्फलाम वाला है तो 1 जेर, अगर इल्फलाम के बगैर है तो 2 जेर के साथ होगा. ठीक है. तो ये माँ के साथ 3 चीजें आज आपने यहाँ इंपॉर्टेंट सीखी. उन पे जरा फिर से नजर आप दौड़ाएं. एक आपने लाम जबल्ला या लाम देले वो कभी ला आता है कभी ले आता है. नंबर 2 इन द. नंबर 3 मा. इन तीनों को जरा एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहें. हमारे पास अब सिर्फ कुछ सेकंड्स का लम्हा ये समय है, तो हम आज के इस दूसरे सेशन को, दूसरे लेक्चर को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अल्लाह हाफिज़.